Hey guys, so today we'll be doing the question called remove duplicates letter. Now, how do we go about solving this given question is that कि let's say that the question says that पहले तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. इसमें काफी डुप्लीकेट्स है ना, फर्जी है. तो हमें बस क्या करना है कि ऐसे एलिमेंट्स को रिमूव करना है. सारे डुप्लीकेट एलिमेंट को तो रिमूव करना ही करना है, बट ऐसे रिमूव करना है ताकि हमारा जो आंसर मिले वो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो. ठीक है, यू हैव टू मेक लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट रिजल्ट. मतलब कि एक रिजल्ट क्या हो सकता है पहले वो देखते हैं. हम पहले बी को सिलेक्ट करते हैं, फिर सी को सिलेक्ट करते हैं, फिर ए को सिलेक्ट करते हैं. तो एक पॉसिबिलिटी है. और जो तुम्हारे बाकी बी सी है वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो गए. वी जस्ट रिमूव देम. So the effective will become BCA. The effective will become BCA. So this is one possibility. But can we have another possibility? Let's see. We can even select this C. We selected this C. We selected this A. Then we selected next B. बन गया cap. है ना? But are there more possibility? Yes. We can skip these two and we can start from A itself. A, B, C. ये दोनों को स्किप क्यों किया? क्योंकि ये डुप्लीकेट एलिमेंट है, इनके जुड़वे भाई एग्जिस्ट करते हैं एंड वी कैन इजीली स्किप देम. सो दैट्स व्हाई वी गेट मल्टीपल आंसर. बट इसमें से हु इज द स्मॉलेस्ट वन? दिस वन. दिस वन इज द स्मॉलेस्ट. सो वी हैव टू रिटर्न दिस थिंग. Now how we can go about solving this given question? So the thing is that if you directly look at the example, you won't be able to think, dude. I am being frank, even I didn't thought. Even I was not able to think. So I broke it down to very simple. Like if you want to solve a very good question, you have to, and the example itself is very tempting. Start with a smaller example. Okay, we'll start with a very basic example. B, A, B. Now this is a simple example. Now how will we go about solving this given question? Let's say that we consider this B. Okay, and we use some data structure to store this B. Okay, I'm just using some data structure to store this B. Okay, now we encounter A. Okay, and we say that, oh, I do not know that, okay, B was already present. So what will A think that, hey, I am more larger, matlab, I have more value than B. Why you are keeping B? Then B will also think that, oh yeah, that is true. A has more value than me. What should I do? Should I kick myself out? But remember one thing, B can only kick himself out if there exists another B. Well, that way we can do that. So we need some other data structure to store and indicate that ये index के बाद में भी after this index also, let's say this index was I is equal to 0 and this index is 2. If I were to kick this B, then I need to have that surety कि if I remove myself, then there should be another B after if I were to include A. ठीक है, because what? Note, we want to consider the smallest lexicographically, and to consider the smallest, first what I did was that I started with a random data structure. I'm not going to reveal, you're going to decide for yourself which one data structure we will use, but I started with some data structure. Then I said that, oh, I encountered a B. Now after this point I got another element A. Now the value of A is more, so A will think that, even I will think that A should be given more priority than B. So we have to eventually remove B so that the answer can start from A. है ना? And what is the condition to remove B? The B should occur after this given A. है ना? Only then I can ensure that, oh, later I'm kicking this current B now, but later I know that there will be another B which will come to in our picture. That's it, guys. If you got this part now, that's it. You have understood the given question. I'll give you surety. Now take a break. I have given you this hint. Take a break. Think about how we can actually solve this. So for those of you who have come back after the break, let's see that how we can actually go about it. So one thing for surety I know is that I need to store the indexes. I need to store the indexes of what? Of the last scene. मतलब ऐसा होता है ना कि last petrol pump, मतलब तुम बोलते हो कि you're driving a car, okay? You're driving a car and you see that, oh, I still have fuel left. But I will not choose Bharat Petroleum. I will choose something like this, okay? Bharat Petroleum इधर मिला मेरे को. But you are like, no, I will not consider it. Bharat Petroleum उसके बाद भी आता है. How will we store that information? We can use something called last index. Last index क्या करता है ना कि it tell you the last index to the point this given B is present. ठीक है, मान लो कि ये बी आई इज इक्वल टू 0 था, फिर तुम इटरेट करते हो एंड इधर पहुंचते हो आई इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 पे. तो तुम ये बी देखते हो
तुम्हारा जो एरे है ना, एरे लास्ट इंडेक्स ऑफ बी, इट विल स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ 3। मतलब ये क्या बोल रहा है, जो तुम्हारा भारत पेट्रोलियम है वो तुमको 3 इंडेक्स तक दिखेगा। मतलब तुमने गाड़ी आई इज इक्वल टू 0 पे चालू की, जो तुम्हारा भारत पेट्रोलियम है, तुम इंश्योर कर सकते हो कि अगर तुम्हें पेट्रोल रिफिल करना है तो आई इज इक्वल टू 3 तक दिखेगा। एज सिंपल एज दैट। एंड वी कैन कंस्ट्रक्ट दिस फॉर एवरी गिवन एलिमेंट, एवरी गिवन एलिमेंट। लेट्स से दैट वी स्टोर द लास्ट इंडेक्स ऑल्सो फॉर ए का लास्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1, सॉरी 2। एंड सिमिलरली सी का लास्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, सी लास्ट index will be 4. So now we have stored this information. So you might ask me that what do we do with this information? ठीक है, how will we store our given answer? So think for yourself, how we are storing this answer? We need to store कि पहले तो एक ये information चाहिए ना कि we have to construct the string. So one thing I will tell you over here is that कि we need to use a data structure. Let's say that we use stack. Okay, this is a pretty interesting thing. Okay, and I will tell you how stack will work. So I store B. ओके, एंड बी से फिर मेरे को सी मिला। बी क्या बोलेगा, ही इज अ स्मॉल गाय, आई हैव मोर वैल्यू, सो लेट हिम बी, वो मेरे बाद आएगा। ठीक है, एंड ए आता है। अब इधर ए आता है, ए क्या बोलता है कि ओ हु इज एट द टॉप, ए देखता है सी है, तो ए सोचता है कि हे डूड, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर प्रेजेंट हियर, बट आई फील आई हैव मोर वैल्यू, आई फील आई हैव मोर वैल्यू, सो कैन यू प्लीज गेट आउट ऑफ द डोर। सो सी भी सोचता है कि एक बड़ा आदमी ने मेरे को ये चीज़ बोला, आई शुड किक माई सेल्फ आउट। बट सी इज लाइक कि माई आई विल कम बट ओनली आफ्टर, मतलब निकाल दो कि बाद में आऊँगा ना। बट सी सोचता है क्या मैं बाद में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, ओनली देन आई विल लेट इट गो, बिकॉज द क्वेश्चन सेज दैट वी हैव टू रिमूव डुप्लीकेट लेटर्स। अगर सी का कोई डुप्लीकेट लेटर नहीं है, देन इट मेक्स नो सेंस टू किक द सी आउट। अगर सी का कोई डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट है, देन इट मेक्स टू रिमूव हिम। सो वॉट वी विल डू इज दैट कि हमें पता है कि सी का लास्ट इंडेक्स कहाँ था, 4 तक प्रेजेंट है। सी इसको तुरंत चेक करेगा एंड वो गहरी सांस लेगा, लाइक ओके आई विल किक माई सेल्फ आउट बिकॉज आई कैन कम अगेन आफ्टर रिट्रेटिंग। So C kicks himself out. Same ideology for B as well. So B will also find that, oh, I appear over here, then I can kick myself out. And eventually what will happen over here is that in the stack में A आ जाएगा, and after that we can start putting B and C. As simple as that. So that's it guys. I mean, I do not think so after this you need to worry about anything. So there are a couple of corner cases you need to ensure कि देखो, पहले तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि लास्ट इंडेक्स स्टोर कर लिया, ठीक है, बट ऑल्सो यू नीड टू एंश्योर कि मेरे स्टैक में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, है ना। इफ यू हैव ऑलरेडी एनकाउंटर बी, देयर इज नो पॉइंट, लेट्स से दैट कि अब देखो सी इधर एनकाउंटर कर लिया हमने, अब मान लो कि इधर एक और सी होता, डू यू थिंक इट्स एड्स अ वैल्यू टू ऐड द सी अगेन, है ना। डू यू थिंक इट एड्स अ वैल्यू? नो, बिकॉज सी इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ स्टैक। But who is storing this information that C is present in a stack? No one. And you cannot iterate over the stack. That will be very expensive. Think about it. तुम अगर एक नया एलिमेंट डाल रहे हो स्टैक में एंड तुम्हें पता नहीं है, अभी मान लो कि सी की जगह कुछ बी होता, सी की जगह कुछ बी होता, देन बी भी हम तुरंत ही ऐड कर देते इसमें। बट द प्रॉब्लम इज दैट वी विल नॉट डू दिस ना, क्योंकि हमने बी को ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। बी को कहां कंसिडर किया, इधर कंसिडर किया, so it makes no sense to include B again because we have to ensure that there is no duplicacy and the stack is used to store our answer. So हमें क्या करना पड़ेगा, एक और डेटा स्ट्रक्चर देना पड़ेगा कॉल इन स्टैक। ये क्या करेगा ना कि इट विल जस्ट इंडिकेट ट्रू और फॉल्स। मान लो कि इफ B was present then it makes no sense to include this B, so we exclude it. And अगर इन स्टैक ट्रू है तो उसको मान लें कि वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, as simple as that. So I'll just show you the code now since it makes more sense. And एक और चीज देखो, आंसर अगर तुम स्टैक से पॉप करोगे तो पहले क्या एलिमेंट निकलेगा, सी निकलेगा, फिर पॉप करोगे क्या एलिमेंट निकलेगा, बी निकलेगा, फिर पॉप करोगे ए निकलेगा। बट तुम्हें पता है आंसर क्या है, ए बी सी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। तो दैट्स इट। मैं अपना कोड दिखा देता हूँ, इसको काफी बार सॉल्व किया था पहले यार, तो भी मैं कभी कभार हक देता हूँ। बट एनीवेज, हमने क्या किया, पहले लास्ट सीन स्टोर किया, फिर हमने इंस्टैक स्टोर किया, दैट स्टोर की ये गिवन एलिमेंट प्रेजेंट है, ये गिवन ए बी सी कुछ भी एलिमेंट प्रेजेंट है स्टैक में या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अगर और हम क्या देखेंगे कि पहले देखो ये स्टैक का जो कंपैरिजन है वो खुद देख लेना यार तुम, मतलब पहले तो जो भी कंपैरिजन कर रहे हो, पीपल डू दिस मिस्टेक वेरी ऑफन, व्हाट दे डू इज दैट कि दे डायरेक्टली स्टार्ट असेसिंग द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। क्यों करना भाई, तुमने देखा कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एसेस करेंगे। एंड वन मोर थिंग, we need the indexes right now, I just for the visualization purpose I have just shown you the b value, but ये b value एक्चुअली ना क्या होगा, एक इंडेक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तुम्हें विजुअलाइज करने के लिए मैंने थोड़ा कैरेक्टर दिखाया था, बट एक्चुअली यू हैव टू यूज इंडेक्सेस बिकॉज वाई इंडेक्सेस यू माइट आस्क मी, बिकॉज ना प्रॉब्लम क्या होता है कि इफ यू जो स्टोर द कैरेक्टर यू कैन नॉट टेल कि ये बी कहाँ से उठाया था तुम, ठीक है, ये बी कहाँ से उठाया था, एंड यू कैन नॉट इन्फर कि कौन से इंडेक्स से बी आया है ना। सो द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट कि यू डो नॉट नो विच इंडेक्स दिस बी हैज कम, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू नो दिस इंडेक्स। एंड ये इंडेक्स कहाँ काम आएगा, टू इंश्योर कि देखो ये इंडेक्स का हमें देखना पड़ेगा पहले तो कि क्या जो मेरा टॉप एलिमेंट है क्या वो करंट एलिमेंट से ग्रेटर है या नहीं, ठीक है, ये चेक होगा हमारा। और एक होगा चेक किसका, लास्ट सीन का। मैं क्या बोल रहा था कि ये बी को तुम कब देखो हमने पहले क्या कंसिडर किया था, ऐसा स्टैक कंस्ट्रक्ट किया, पहले बी डाला फिर सी डाला फिर ए डाला। ए क्या बोलता है, देख सी तुम बाद में आ रहे हो, पर ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगा कि सी तुम बाद में आओगे। वो सी क्या करेगा, अपना इंडेक्स, अगर हम इंडेक्सिंग के तौर पे स्टोर करेंगे तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि सारे इंडेक्स स्टोर कर दिए हमने स्टैक में, एंड देन वी असेस द लास्ट इंडेक्स, एंड देन वी कंपेयर बिटवीन टू। अगर लास्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन दिस इंडेक्स दैट मीन्स कि दिस एलिमेंट विल अकर लेटर, है ना, दैट मीन्स दिस एलिमेंट विल अकर लेटर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि एक फाइनल चेक ये कर देना कि इन स्टैक में है कि नहीं, मतलब अगर स्टैक में नहीं है तो वर्थ इट नहीं है फिर चढ़ाना, मतलब आई एम सॉरी नॉट दिस वन सॉरी। सो अभी ये क्या हो जाएगा, हम पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, माय बैड माय बैड। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग सी को निकाल रहे हैं स्टैक से। तो हमने क्या डिस्कवर किया था कि इन स्टैक वाला एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे टू इंडिकेट कौन से एलिमेंट्स हमारे स्टैक में प्रेजेंट है। सो अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट पॉप कर रहे हैं स्टैक से, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसका इन स्टैक फॉल्स मार्क करना पड़ेगा फिर पॉप करना पड़ेगा। और अगर कोई भी एलिमेंट पुश कर रहे हैं तो उसको पुश करो स्टैक में विद इंडेक्स, एंड उसको इन स्टैक में ट्रू मार्क कर दो। फाइनली आंसर रिटर्न करने के लिए क्या करना है, तुम्हें सारे एलिमेंट्स पॉप करो, एक स्ट्रिंग में स्टोर करो और रिवर्स करके रिटर्न कर दो। दैट्स इट गाइस, दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट। Any further question, please let me know in the comment section. I hope you enjoyed this video. This question is actually frequently asked during the Amazon interview. And please revise yourself. Please have your data structures very clear. Revision is the only key. Thanks.